حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، بی بی این خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میونسپل الیکشن میں کانگریس کی زبردست فتح، جیتے 1537 وارڈز، BRS کی 781 سیٹوں پر کامیابی، کریم نگر و نظام آباد میں بی جے پی کی پوزیشن مضبوط۔ MIM کی تلنگانہ میونسپل الیکشن میں 70 سیٹوں پر تاریخی جیت، نظام آباد میں 14 وارڈز جیت کر کنگ میکر کی پوزیشن، میئر و ڈپٹی میئر الیکشن میں مجلس کی حمایت فیصلہ کن ہو سکتی ہے ثابت۔ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے ترقی و فلاح بہبود کو دی ترجیح، بٹی وکرمارگا کا دعویٰ، کانگریس پر سرکاری مشنری کے غلط استعمال کا KTR کا الزام۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں میئر کی کرسی پر سسپنس ختم، بی جے پی کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان، کانگریس اور MIM پارٹی بنائیں گے میئر و ڈپٹی میئر۔ کل ہند صنعتی نمائش کا اتوار یعنی 15 فروری کو ہوگا اختتام، لاکھوں افراد نے کیا نمائش کا مشاہدہ، GHMC کی اسٹال کو بیسٹ اسٹال کا ایوارڈ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے بلدیاتی انتخابات 2026 میں ریاست کی حکمران کانگریس نے تاریخی اور شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے 116 شہری مقامی اداروں میں سے 84 پر واضح اکثریت درج کی ہے اور مجموعی طور پر 2996 وارڈز میں سے 1537 نشستیں جیت کر شہری علاقوں میں اپنی مضبوط عوامی حمایت کا لوہا منوایا، جسے سیاسی مبصرین ریاست کی سیاست میں بڑے رجحانی بدلاؤ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کانگریس نے نلگنڈا، کھمم، سدی پیٹ اور محبوب نگر سمیت مختلف اضلاع میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور کئی بلدیات میں کلین سویپ کیا۔ اس کے علاوہ برعکس سابق حکمران BRS کو شہری علاقوں میں سخت دھچکا لگا اور وہ صرف 25 بلدیاتی اداروں اور 781 وارڈز تک محدود رہی، جبکہ بی جے پی نے 6 بلدیاتی اداروں اور 136 وارڈز پر کامیابی حاصل کر کے خاص طور پر کریم نگر اور نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں اپنی موجودگی مضبوط بنائی۔ مزید برآں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھی تقریباً 70 وارڈز جیتے، جبکہ 21 و 83 آزاد امیدواروں کی کامیابی نے کئی مقامات پر متعلق صورتحال پیدا کر دی ہے۔ وہیں اس سال کے اختتام تک GHMC کے انتخابات بھی متوقع ہیں اور اس پس منظر میں صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس GHMC میں بھی شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ریونت ریڈی کی قیادت عوامی حکومت کی شفاف اور مؤثر حکمرانی پر عوام مطمئن ہیں، جس کا اظہار ریاست بھر میں 75% سے زائد بلدیات پر کانگریس کی کامیابی سے ہوتا ہے۔ تلنگانہ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست بھر کے مختلف بلدیات میں مجموعی طور پر 70 وارڈز پر کامیابی حاصل کی اور شہری سیاست میں اپنی موجودگی مزید مستحکم کر لی۔ مجلس نے ان بلدی انتخابات میں تقریباً 220 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ پارٹی نے شمالی و جنوبی تلنگانہ کے متعدد اضلاع میں کامیابیاں سمیٹے، جبکہ بھینسا اور بودھن سب سے نمایاں رہے، جہاں 12 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں 14 وارڈز جیت کر جماعت کنگ میکر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ عادل آباد میں 6، کریم نگر، نرمل اور محبوب نگر میں 3 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ جگتیال، ظہیر آباد، نلگنڈا اور نارائن پیٹ میں 2 وارڈز پر کامیابی ملی اور سنگاریڈی، گدوال، وکھارآباد، کاغذ نگر، کوڈنگل، کوہیر، آرمور اور ٹانڈور میں 1 نشست جیتی گئی۔
पार्टी क़ियादत ने इन नताइज को अवामी एतमाद का मजहर करार देते हुए कारकुनों और वोटरों का शुक्रिया अदा किया और अज़्म जाहिर किया कि शफ़ाफ, बाविखार और अवाम दोस्त सियासत के जरिए शहरी तरक्की और इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक कई बल्दियाती इदारों में मुताल्लिक़ सूरत हाल के सबब MIM आइंदा मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में अहम किरदार अदा कर सकती है, जिसका बाज़ाब्त शेड्यूल जारी होगा और 16 फरवरी को नौ मुंतखब अरकान हलफ लेने के बाद चेयरमैन व मेयर का इंतखाब करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी को ही अवाम ने मौका दिया है और हुकूमत पर अवामी एतमाद बरकरार है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नताइज के बाद गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि रियासत में कांग्रेस पार्टी का जुमला 94 बल्दियात और 5 कारपोरेशनों पर इख्तिदार हासिल हुआ है। रियासत के शहरी इलाकों के अवाम ने तरक्की और फलाह बहबूद के कामों को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत के 2 कारपोरेशनों में मुताल्लिक़ नताइज सामने आए हैं और अवाम ने BRS और BJP की फर्जी कहानियों, नादर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आला मियार की खिदमत फराहम करने पर तवज्जो देगी और अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जुमला 83 बल्दियात में फैसला कुन बरतरी हासिल हुई। कुछ बल्दियात में पार्टी दूसरों की मदद से कब्जा हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को जुमला 94 बल्दियात पर मुकम्मल कब्जा हासिल होगा। इससे पता चलता है कि रियासत की अवाम तरक्याती और फलाही काम करने वालों को तरजीह देते हैं और BRS और BJP को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस को कामयाब बनाने पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధికి, సంక్షేమానికి, విశ్వసనీయతకి పెద్దపీట వేస్తారనేది అనేక సందర్భాల్లో ఇది గమనిస్తూ వచ్చాం. ఈ రోజు కూడా తిరిగి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు BRS కానీ లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ గాలి కబుర్లు, కట్టుకథలు, అట్లాగే ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రచారాల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన, పార్టీ పైన ప్రచారం చేశారు. ప్రజలు గమనించారు. ప్రజాప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇది ప్రజల కోసం చేస్తున్నటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలని, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని, ప్రజల పట్ల ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి నిబద్ధతని, విశ్వసనీయతని గమనించి ఈ గాలి కబుర్లు చెప్పేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్తిగా వాళ్ళ స్థానం ఏంటో ఓటు ద్వారా వారికి చూపించారు. అందుకోసమే మాకు, మా ప్రభుత్వానికి ఇంకా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ, బాధ్యత వారు మాకు ఒప్పజెప్పినటువంటి విజయంతో పెరిగిందని మేము భావిస్తూ, భవిష్యత్తులో కూడా వారు ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంచినటువంటి నమ్మకాన్ని, అట్లాగే ఈ ప్రభుత్వం పైన వారు పెట్టుకున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి విధానాన్ని వమ్ము చేయకుండా అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రమాణాలతో పరిపాలన అందిస్తాం. ఈరోజు జరిగినటువంటి 116 మున్సిపాలిటీల్లో, అట్లాగే 7 కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు సంబంధించి దాదాపు మాకు అంది వస్తున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఇప్పటి వరకు స్పష్టంగా 83 మున్సిపాలిటీస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతతో ముందుకు పోతా ఉంది. మిగిలి ఉన్నటువంటి మిగతా స్థానాల్లో కూడా చాలా చోట్ల ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు, కొన్ని చోట్ల ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అభ్యర్థులు, సరే కొన్ని చోట్ల మిగతా ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న అక్కడక్కడ చెదురుమదురుగా BRS పార్టీకి, BJPకి అక్కడక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఇప్పటికే ఇండిపెండెంట్గా గెలిచినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం దృష్టికి వస్తూ వారంతా కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు ఇంకా కొనసాగించడానికి మేము కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిచినట్టుగానే మేము కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తూ చేయూతనివ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నామని చెప్పి వారందరూ కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నాయకత్వంతో చేతులు కలుపుతూ ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने बल्दी इंतखाबात के नताइज को हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर अवामी एतमाद का मजहर करार देते हुए कहा कि यह कामयाबी महज इंतखाबी जीत नहीं बल्कि अवामी खिदमत की जिम्मेदारियों में इजाफे का इशारा है।
नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस क़यादत को मुकम्मल यकीन था कि अवाम अपोजिशन के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे और रियासत के इमेज को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश को मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में हुकूमत ने रियासत की माशी सूरत हाल को मुस्तहकम बनाने के साथ साथ तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावारी को यकीनी बनाया, जिसका एतराफ़ अवाम ने अपने वोट के जरिए किया है। श्रीधर बाबू ने राय दहिंदों को मुबारकबाद पेश करते हुए कांग्रेस कारकुनों की आंतरिक मेहनत को सराहा और पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। साथ ही इस अज़्म का इजहार भी किया कि आइंदा 3 बरसों में हर शोबे में मज़ीद तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की कुर्सी से मुतालिक सस्पेंस खत्म हो गया है, जहां बीजेपी ने 28 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। पार्टी एमपी डी अरविंद ने वादे किया कि वो इख्तिदार की सियासत के बजाय अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। दूसरी जानिब हुक्मरान कांग्रेस और एमआईएम के दरमियान मुफाहिमत के बाद मेयर के ओहदे पर कब्जा करने की राह हमवार हो गई है, जिससे कॉरपोरेशन में इख्तिदार का नया सियासी तवाज़ुन कायम होने जा रहा है। सियासी हलकों के मुताबिक बीजेपी के अपोजिशन में रहने के फैसले के बाद कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अददी बरतरी हासिल हो गई है और आइंदा 10 दिनों में मेयर के इंतखाब का अमल बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल होने की तवक्को है। 8 సీట్లు గెలవటము, అది 42-43% మైనారిటీ పాపులేషన్ ఉన్న మున్సిపాలిటీలో గెలవటము, ఇది భారీ విజయం. ఇది అన్ఫార్చునేట్గా ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ఉన్నట్టు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీని జర ఆగుతారా అన్నయ్య, ఏం గడబడి చేస్తున్నారు? సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీని పిలువరు ఇందులో. అట్లా పిలిచుంటే మేయర్ కూడా మేమే తగ్గించుకునే వాళ్ళము. ఎనీవేస్, నో రిగ్రెట్స్. పీపుల్ ఆఫ్ ఇందూర్ స్టుడ్ బై మీ, పీపుల్ ఆఫ్ ఇందూర్ స్టుడ్ బై మై పార్టీ, my ideology, and I will be ever grateful to whoever have voted for Bharatiya Janata Party in the recently concluded corporation elections. ఇక 28 మనకు, కాంగ్రెస్ ఎన్ని 17 కాంగ్రెసు, 14 ఎంఐఎం, 1 టీఆర్ఎస్. ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో నా మీద కేసు పెట్టిండ్రు. మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు కాంగ్రెస్ చాప్లో చేయనికున్నారా? నిన్న టీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్ ఇంటి ముందర ఏం చేస్తుండే? रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है, जिसके फौरी बाद सियासी जमातों की जानिब से वार्ड्स मेंबर्स और काउंसिलर्स को खरीदो फरोख्त की कोशिशों के इल्जामात का भी आगाज हो गया है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने इल्जाम आयद किया कि करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ओहदा हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीआरएस की जानिब से कोशिशें शुरू हो गई हैं। बंडी संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के टिकट पर कॉरपोरेटर मुंतखब होने वाले अफराद से कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें अपनी सफ़ों में शामिल करने इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस की ये कोशिशें शर्मनाक हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर करीमनगर मेयर का ओहदा हासिल किया जाए। बंडी संजय कुमार ने कहा कि दोनों ही जमातों को करीमनगर के अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी है। इसके बावजूद ये दोनों जमातें किसी भी कीमत पर मेयर का ओहदा हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी के कॉरपोरेटर्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये कोशिशें इंतहाई शर्मनाक हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मजमूई तौर पर हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि पार्टी कैडर को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीआरएस ने 30% से ज़्यादा वार्ड्स में कामयाबी दर्ज करते हुए 15 बल्दियात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की, जबकि मजीद 37 बल्दियात में मजबूत कारकर्दगी के सबब मुताल्लिक़ सूरत हाल पैदा हुई है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को 700 ता 800 वार्ड्स में कामयाबी की उम्मीद थी और आइंदा बेहतर नताइज के लिए जामा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी इस मौके पर मौजूद थे।
केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि बाज़ मुकामात पर हुक्मरान कांग्रेस ने सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए पैसा और शराब को पानी की तरह बहाया और अहदेदारों पर दबाव डालकर नताइज मुतासिर कुन की कोशिश की, जिसकी मिसाल गदवाल और वर्धनापेट में मुतअद्दिद बार रिकाउंटिंग से मिलती है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी कोयला घोटाले के इंकशाफ के बाद सीपीआई केतनपल्ली में बीआरएस के साथ आई, जिससे कामयाबी मुमकिन हुई। ताहम मुताल्लिक़ बल्दियाती इदारों में कांग्रेस चेयरमैन की नशिस्तों पर कब्जा के लिए तोड़ जोड़ में मसरूफ है। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిజానికి అధికార పార్టీ ఎన్ని రకాలుగా ఈ ఎన్నికల్లో సామధాన భేద దండోపాయాలు ప్రయోగించే ప్రయత్నం చేసినా వారు స్పష్టంగా ప్రజల మనసు గెలుచుకోవడంలో విఫలమైనారు అని చెప్పుకోక తప్పదు. మరి సాధారణంగా ఎన్నికలు మీరు ముఖ్యంగా పంచాయతీ ఎన్నికలు కానీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు కానీ చూస్తే అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి ముఖ్యంగా ఇంకో 2-3 ఏళ్ళు ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పుడు, అధికారంలో కొనసాగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు మరి ఇది అధికార మార్పిడి కోసం జరిగేది కాదు కదా అనే ఆలోచన ఈ మధ్యన దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో కనబడతా ఉన్నది. కానీ దానికి భిన్నంగా తెలంగాణలో మీరు చూసినట్టయితే మొన్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 2 ఏళ్ళు తిరగకముందే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు బుద్ధి చెప్తూ దాదాపు 40% గ్రామ పంచాయతీలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కట్టబెట్టారు. పోనీ ముఖ్యమంత్రి గారి లెక్క ప్రకారం తీసుకున్నా, ఆయన బయటకు వచ్చి కూర్చొని ప్రెస్ల మీద చెప్పిన లెక్క ప్రకారం చూసుకున్నా, ఆయన సహజంగానే మా తక్కువ చేసి చెప్తాడు కాబట్టి 32% అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి లెక్క ప్రకారం కూడా మాకు సర్పంచ్ల్లో ప్రజలు గెలిపించారు. 4000 పైచిలకు గ్రామాల్లో మా సర్పంచులు గెలిచారు. అట్లాగే ఈ రోజు మున్సిపల్ ఫలితాలు చూస్తే కూడా డెఫినెట్గా గతంలో ఎవరెవరైతే ఏదేదో మాట్లాడినారో వారందరూ నోర్లు మూతలు పడే విధంగా ఇవాళ మరి మెరుగైన ఫలితాలే సాధించాము. ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు 2580 చిల్లర వార్డులలో పోటీ అయింది. మొత్తం 117 మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్ కలిపి 2580+ వార్డ్స్లో మరి ఎన్నిక జరిగితే బీఆర్ఎస్ నాకున్న ఈ నిమిషానికి ఉన్న రిపోర్ట్ ప్రకారం దాదాపు 730 దాకా మాకు ఇప్పటికే ఫలితాలు వచ్చినాయి. ఇంకొక 10-15 పెరిగితే పెరగవచ్చు. ఓవరాల్గా 740-750 దాకా వస్తాయి వార్డులు అనేది మా అంచనా. అంటే దాదాపుగా మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఒక 30% పైగానే ఇక్కడ కూడా ఫలితాలు వచ్చినాయి. దానికంటే కూడా ముఖ్యంగా చాలా వీరోచితమైన పోరాటం. నిజంగా చెప్పాలంటే కొన్ని చోట్ల ఇవాళ అధికార పార్టీ తట్టుకోలేక ఇవాళ గద్వాలలో ఒక వార్డులో 4 సార్లు రీకౌంటింగ్ చేయించారు. అంటే కాంగ్రెస్ గెలిచేదాకా రీకౌంటింగ్ చేసి ఆఖరికి ఒక ఓటుతో గెలిచిందని చెప్పి అధికారులను అడ్డం పెట్టుకుని గద్వాలలో ఒక వార్డు నెగ్గే ప్రయత్నం చేసినారు. వర్ధనపేటలో ఈ నిమిషానికి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం, అక్కడ ధర్నా నడుస్తుంది. మా కౌన్సిలర్లను ఎత్తుకొని పోయి గెలిచిన కాడ రీకౌంటింగ్ 4 సార్లు చేసి అక్కడ కూడా ఇదే ప్రయత్నం. చౌటుప్పల్లో ఇదే రకమైన ప్రయత్నం. అంటే అధికారులను, అధికార యంత్రాంగాన్ని, అధికార బలాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని గెలిచినమా అంటే గెలిచినాం అనిపించుకోవడానికి సాంకేతికంగా నానా తంటాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పడతా ఉన్నది. అయినప్పటికీ నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మొత్తం 117 మొత్తం పట్టణాల్లో జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో మాకు ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గానే అంటే ఎవరి అవసరం లేకుండా నేరుగా దాదాపు 15 నుంచి 16 నేరుగా గెలుస్తున్నాము. పరోక్షంగా, ఎందుకంటే అక్కడ మేము సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా ఉన్నాం, అక్కడ కూడా ఇంకో దాదాపు 10-15 చోట్ల అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా నాకు సమాచారం ఉంది. చూద్దాం మరి ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా 16 తారీఖు నాడు अन्य विषयालू తెలుస్తాయి. साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस रुकने असेंबली टी हरीश राव ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को कांग्रेस हुकूमत की गैर जमहूरी हुक्मरानी पर अवामी तमाचा करार देते हुए दावा किया कि चीफ मिनिस्टर उजरा और पूरी सरकारी मिशनरी के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद बीआरएस उम्मीदवारों को रोकना मुमकिन नहीं हो सका और पार्टी ने 700 से ज्यादा वार्ड्स में कामयाबी हासिल करके अवामी रुझान वाजे कर दिया है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ताकत के गलत इस्तेमाल, पैसे की सियासत और दबाव के हथकंडों के बावजूद बीआरएस की जीत इस बात का सबूत है कि रियासत में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 2.5 साल दौरे हुकूमत में तरक्की की रफ्तार सुस्त बढ़ गई है। देही व शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलतें मुतासिर हुई हैं। 6 जमानतों समेत इंतखाबी वादे पूरे नहीं हुए और फलाही स्कीमात तातुल का शिकार हैं। हरीश राव के मुताबिक ग्राम पंचायत के बाद बल्दियाती नताइज ने भी साबित कर दिया है कि रियासत में कांग्रेस का मुतबादिल सिर्फ बीआरएस ही है।
और ये नताइज मुस्तकबिल में इख्तिदार की वापसी का इशारा हैं। जबकि पार्टी अवामी इशारा आशीर्वाद से तेलंगाना में दोबारा गुलाबी परचम लहराना के अज़्म के साथ हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करती रहेगी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगरचे तंजीम ने बाज़ाब्त तौर पर सियासी जमात के तौर पर ऐलान नहीं किया था, ताहम चंद कारकुनों की ख्वाहिश पर आखिरी लम्हे में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के इंतखाबी निशान पर मुकाबला किया और अवाम तेलंगाना ने हौसला अफजा नताइज देकर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने बताया कि इनकी जमात एक बल्दिया में कामयाब हुई है और एक बल्दिया में नायब चेयरमैन के ओहदे का तक पहुंच रही है, जबकि तकरीबन 40 मुकदमात पर कामयाबी के इम्कानात मौजूद थे। कविता ने कहा कि शफ़ाफ, गैर मुतकब्बिराना और सबको साथ लेकर चलने वाली सियासत के अहद पर कायम है और उम्मीद जाहिर की कि अवाम की हिमायत आइंदा भी जारी रहेगी। इस मौके पर उन्होंने BRS को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की मुबैना नाकामियों को उजागर करने में BRS खुद नाकाम रही और माजी में 90% बल्दियात जीतने वाली जमात अब महज चंद नशिस्तों तक महदूद हो चुकी है, लिहाजा इसे अवामी मोहब्बत खोने की वजूहात का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए। పట్టణాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి ఏంది అనే ప్రశ్న కూడా వేయడం లేదు। పైగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా కేటీఆర్ గారే ఉన్నారు। అంతకుముందు నేను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా మొత్తం అన్ని మున్సిపాలిటీలని తీర్చిదిద్దినా అని చెప్పినటువంటి కేటీఆర్ గారు మరి అలా 16 స్థానాలు వచ్చినా 17 స్థానాలు రాగానే మాకు ఈ మాత్రం వచ్చుడే ఎక్కువ, ఆనాడైతే కాంగ్రెస్కి అది కూడా రాకుండా చేసినాం మేము అని చెప్పి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు। BRS పార్టీ అట్టర్గా ఫెయిల్ అయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క తప్పుల్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడంలో, అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ మున్సిపాలిటీస్లో బెటర్ రిజల్ట్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటా ఉన్నా। లేకపోతే ప్రజలు మాత్రం ఆల్టర్నేట్ లేక వేసిరు తప్పితే ఉండి కాదు। అంటే ఒక విచిత్రమైన స్థితి ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొన్నది। డెఫినెట్గా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు మాలాగా కొత్తగా ఒక మంచి ఎజెండాతో వచ్చే వాళ్ళకు స్వాగతిస్తారనేటటువంటి విషయాన్ని నిన్నటి ఎన్నికల ఫలితాలు రుజువు చేసినాయని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నా। आरमूर शहर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हबीब ने म्युनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे के लिए श्रीदेवी के नाम की हिमायत करते हुए पार्टी क़यादत से अपील की है कि शहर की हमाजहत तरक्की को पेश नज़र रखते हुए इन्हें कोऑप्शन के जरिए म्युनिसिपल कौंसिल में शामिल करके चेयरपर्सन मुकर्रर किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 17 में श्रीदेवी ने गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम देकर अवामी खिदमत की मिसाल कायम की है और अगर इन्हें म्युनिसिपल की बाग दौड़ सौंपी जाए तो आरमूर के तमाम 36 वार्ड्स में भी मिसाली तरक्की मुमकिन है। हबीब ने जोर देते हुए कहा कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए ऐसा फैसला किया जाना चाहिए जो शहर के बेहतर मुस्तकबिल और बुनियादी सहूलियात की मौसर फराहमी को यकीनी बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुद्दीन अलियास हबीब 16-17 वार्ड इंचार्ज AB श्रीनिवास अन्ना के हाथ के नीचे काम कराता हूँ मैं। लिहाजा उनको कॉप्शन मेंबर दे के और म्यूनसिपल के चेयरमैन का बनाने का बारे में हम लोग ये कर रहे। कई को बोले तो अन्ना AB श्रीनिवास अन्ना 2014 में जो जीत के काम जो डेवलपमेंट करे कोई वार्ड में नहीं करे, 36 वार्ड में कोई भी नहीं करे। चिन्ना जो करे ना उतना काम कोई भी नहीं करे। लिहाजा हम सोच रहे कि उनके घर वालों को ऑप्शन मेंबर दे के उनको चेयरमैन बनाना बोल के हम सोच रहे। आरमूर पूरा डेवलपमेंट करते उनके पैसों से, खुद के पैसे लगा के बोरान दलाए सो है, मोटाना डाले सो है, सोलार पैनल घर 2 घर छोड़ने के बाद में 2 घर को लाइट चलेगी भी तो रहना बोल के सोलार पैनल पूरे बिठाए सो है। पूरे वार्ड में 17 वार्ड में पूरे जगह पे कम से कम 100 सोलार पैनल बिठाए सो है। इसके वास्ते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि लायजा हमारे चिन्ना को ऑप्शन मेंबर दे के, श्रीदेवी मैडम को ऑप्शन मेंबर दे के उनको म्यूनसिपल चेयरमैन बनाना बोल के हम ये कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस में वजारती ओहदों के लिए दौड़ धूप और मुतालबात का बल्दियाती इंतखाबात के फौरन बाद आगाज हो गया है। पार्टी के रुकने असम्बली मिस्टर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि वो इन्हें काबिनी ओहदा फराहम करे। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अगर इन्हें रियासती काबिना में शामिल नहीं किया जाता है तो वो रास्त चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने अवाम से खिताब करते हुए सनसनीखेज रिमार्क्स किया।
राजगोपाल रेड्डी मुसलसल काबीनी ओहदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फे से अपने मुतालिबात को दोहरा रहे हैं। ताहम ये पहली मर्तबा है कि उन्होंने वजारत ना मिलने पर रास्त चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने की कोशिश करने का इंतबा दिया। राजगोपाल रेड्डी ने इन रिमार्क्स से सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी में नाराज सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मिस्टर राजगोपाल रेड्डी रियासती वजीर इमारत व शौरे मिस्टर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के भाई हैं। రాబోయే రోజుల్లో మీ ఆశీర్వాదంతో తప్పకుండా మనకు మంచి పదవి వస్తుంది. ఆ పదవి మీకోసం వస్తుంది, నా కోసం కాదు. నేను చెప్తున్నా, మంత్రి కాకపోతే డైరెక్ట్ గా ముఖ్యమంత్రి వాయిదాం భయపడుతున్నారు. నేను చెప్తున్నా, చేస్తారా చేయండి మంత్రి, చేస్తారా చేయండి, ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి మంత్రి. ఆడండి, చేస్తారా ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి చెయ్యండి. ఇంకా వేచి చూస్తున్నా, పదవి గురించి మనం బాధపడలేదు. ఒకవేళ చేయకపోతే డైరెక్ట్ మన టార్గెట్ అదే. ఇంకా మీరు ఏం చేయాలంటే మునుగోడు మీరు చూసుకోవాలి, తెలంగాణ మీరు చూసుకుంటారా? మునుగోడు చూసుకుంటారా? తెలంగాణ నీ జెండా ఎగరేయాలా? సమయం వచ్చినప్పుడు అది కూడా టైం వస్తుంది. మీ అందరి అభిమానానికి, మీ ప్రేమకు, నా తమ్ముళ్ళు నా మీద చూపించే ప్రేమకు నిజంగా జన్మ జన్మలకు రుణపడి ఉంటా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నా. థ్యాంక్ యూ. జై కాంగ్రెస్. गुज़िश्ता 45 दिन से जारी कुल हिंद सनती नुमाइश का इतवार 15 फरवरी को अख्तिताम अमल में आएगा। कुल हिंद सनती नुमाइश का इस बार पूरी कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया और इस दौरान कोई हादसा या नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। कुल हिंद सनती नुमाइश में इस बार जुमला 1100 स्टॉल्स कायम किए गए थे। सनती नुमाइश के जिम्मेदारों का दावा है कि सनती नुमाइश से जुमला 20,000 अफराद को रोजगार के मौके हासिल हुए थे। लाखों की तादाद में सयाहों ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। यहाँ उन्होंने फुर्सत के लम्हात गुजारे और ख़रीदारी की और ग़िज़ाओं से लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए। इस बार कुल हिंद सनती नुमाइश में GHMC के स्टॉल को बेस्ट स्टॉल का अवार्ड दिया गया। इस स्टॉल को GHMC के अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट विंग की जानिब से तैयार किया गया था और जुमला 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खिदमात भी हासिल की गई थी। नुमाइश के दौरान अवाम ने भी इस स्टॉल का मुशाहिदा किया और काफ़ी पसंद भी किया। इख्तितामी तकरीब में नुमाइश सोसाइटी की जानिब से ये अवार्ड दिया गया। कमिश्नर पुलिस मिस्टर VC सजना ने शमशाबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर ने अचानक आउटपोस्ट पहुंचकर वहां तफसीलात से वाकफियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर जनरल डायरी का जायजा लिया, रिसेप्शन रजिस्टर की जांच की, ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों की मालूमात हासिल की और इंक्वायरी रिकॉर्ड्स के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने मुतालिका अमले के साथ आउट पोस्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया और इन्हें हिदायत दी कि वो अपनी खिदमात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें और आवाम की हर मुमकिन मदद करने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवामी शिकायत के फौरी अदाले के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। इंक्वायरी अहदेदारों को चाहिए कि वो हर दरख्वास्त पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अवामी शिकायत की हर वक्त यकसुई मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि बैन रियासती राब्तों को भी बेहतर बनाया जाना चाहिए और मुतालिका अमले के फ़ोन नंबरात को वाज़े तौर पर पेश किया जाना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद अवाम के काम आ सकें। मुतालिका अमले की जानिब से कमिश्नर पुलिस को मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। हैदरा की जानिब से एक दिन में 3,712 गज पार्क की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अराजी की हिफाजत की गई और इसके अतराफ फेंसिंग कर दी गई। कहा गया है कि हैदरा की जानिब से एक कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 6 पार्क्स की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया और जुमला 1452 गज अराजी की हिफाजत की गई। इसके अलावा एक और कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 6 पार्क्स की जुमला 2260 गज अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया।
और इसके अतराफ फेंसिंग करते हुए अराजी की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। कहा गया है कि मुकामी आवाम की जानिब से पार्क्स की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इन शिकायत का जायजा लेने के बाद कार्रवाई करते हुए इन अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए गए। इन अराजियात की जुमला मालियत 37 करोड़ रुपये से ज़ायद बताई गई है। हाइड्रा ने नाजायज़ कब्ज़ा बर्खास्त कर दिया है और पार्क्स की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुकामी आवाम ने हाइड्रा की इस कार्रवाई की सताइश की है। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिर जिले में एक लेबोरेटरी में 2 रिएक्टर्स फट पड़ने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से यहां खौफ की लहर पैदा हो गई। ताहम इस वाक़े में किसी की तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। कहा गया है कि यह वाकया बिरदावन लेबोरेटरी में पेश आया, जो चोट उप्पल पुलिस हदूद में वाक़ है। पुलिस को इत्तला देने के बाद 10 फायर इंजन को तलब कर लिया गया और उन्होंने आग पर काबू पाया। रिएक्टर्स फट पड़ने की वजह का अभी तक इल्म नहीं हो सका। फायर ब्रिगेड अमले ने बताया कि वाकया जुमा की रात 9:30 बजे पेश आया। इस वक्त लेबोरेटरी में कोई भी मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह से और नुकसानात का भी इल्म नहीं हो सका है। कहा गया है कि इस वाक़े में दूसरी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मजदूर मामूली जख्म हुए हैं और इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। रिएक्टर फट पड़ने की वजूहात का पता चलाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन की तक़सीम अमल में आई। सफ़ा बैतुल माल के मुताबिक गुज़िश्ता 19 बरसों से रमज़ान के मौके पर गुरबा व नादिर अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है और इस साल भी तकरीबन 70 से ज़ायद स्लम इलाक़ों में मौजूद हज़ारों मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 3000 रुपये मालियत पर मुश्तमिल राशन पैकेज 600 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तक़सीम किया गया। ये तकरीब आज 14 फरवरी को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट में मुनक़द हुई, जहां हर किट में चावल, दालें, खाने का तेल, चीनी, नमक, मिर्च, मसाला, खजूर और दीगर ज़रूरी अशिया खुर्द व नोश शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 14 फरवरी हफ्ते के दिन यहाँ पर हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से गुरबा अफराद में यहाँ राशन की तक़सीम अमल में आ रही है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारा काम है कि ज़रूरतमंद अफराद तक राशन पहुँचाना। तकरीबन हमने इस साल अभी 2000 से शुरुआत की है, अभी और इंशाअल्लाह आगे राशन अमल में आएगा इंशाअल्लाह। और मेरी अहले खैर हज़रात से गुजारिश है कि वो अपना ताउन सफ़ा बैतुल माल में दीजिए ताकि गरीब मुस्तहिक़ीन बेवा खातूनों में उनके ख़ानदानों तक ये राशन पहुंचा जाए ताकि वो सहर कर सके, अपना रोज़ा रख सके। रमज़ान में भरपूर ताउन करिए ताकि वो अफराद की दुआएं हम तक, आप तक पहुंच सकें। अच्छा, कोई गरीब जी, हमारा हेड ऑफिस ओल्ड मलकपेट वाहिद नगर में है। वहाँ पर आकर दरख्वास्त देने पर हमारे पास से तहकीक की जाती है। उनके घर पे हमारे एक सर्वे ऑफिसर को भेजा जाता है। वो तहकीक करने के बाद उनको एक टोकन दे के जाता है। उसका एक अलग निज़ाम है, उससे वो यहाँ पर आके राशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेवा के वज़ाइफ है, गुरबा वज़ाइफ है, यतीम बच्चों की कफ़ालत है, तिब्बी इमदाद है, ये ऐसा अमल है। और एजुकेशन के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो जी, हमारे एक नंबर है 9142211111। वो नंबर पर आप राब्ता करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस खिदमत में हमारा साथ दे सकते हैं। 8142211111। जी, हमारी ऑफिस का एड्रेस ओल्ड मलकपेट वाहिद नगर मलकपेट पे है। आपकी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है सफ़ा डोनेशंस, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे से। हैदराबाद के इलाके सुलेमान नगर अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दिल खराश वारदात ने सनसनी फैला दी है, जहां एडवोकेट कदीर को मुबैना तौर पर इनके सालों ने ही चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। मौसला इत्तलात के मुताबिक अचानक किए गए इस हमले में वो शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब न लाते हुए जानबर न हो सके, जिसके बाद इलाके में कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई और बड़ी तादाद में मुकामी अफराद जमा हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस के DCP, ACP और SHO अत्तापुर फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचे, इलाके को घेरे में लेकर शवायद इकट्ठा किए और इब्तिदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलविस मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए तलाशी तेज कर दी है।
अख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस की जबरदस्त फतह, जीते 1537 वार्ड्स, बीआरएस की 781 सीटों पर कामयाबी। करीमनगर व निजामाबाद में बीजेपी की पोजीशन मजबूत। एमआईएम की तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन में 70 सीटों पर तारीखी जीत। निजामाबाद में 14 वार्ड्स जीतकर किंग मेकर की पोजीशन। मेयर व डिप्टी मेयर इलेक्शन में मजलिस की हिमायत फैसला कुन हो सकती है साबित। बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने तरक्की व फलाह बहबूद को दी तरजीही। भट्टी विक्रमार्का का दावा, कांग्रेस पर सरकारी मिशनरी के गलत इस्तेमाल का केटीआर का इल्जाम। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर की कुर्सी पर सस्पेंस खत्म। बीजेपी का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। कांग्रेस और एमआईएम पार्टी बनाएंगे मेयर व डिप्टी मेयर। कुल हिंद सनदी नुमाइश का इतवार यानी 15 फरवरी को होगा अख्तिताम। लाखों अफराद ने किया नुमाइश का मुशाहिदा। जेएचएमसी की स्टॉल को बेस्ट स्टॉल का अवार्ड। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के एसी वीआईपी टेंट्स, बी कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।